All right, students. So we discussed the question 8 square divided by 2 cube. Okay. Now next type of question you are having, like simplify. It is written simplify like 12 raised to power 4 into 9 cube into 4 divided by 6 cube into 8 square into 27. Now beta, you get this type of questions also in exam. Now it is written only simplify. In these type of questions usually only simplify is written. हमेशा simplify लिखा आता है. एक मिनट रुको जरा. So in this type of question it is advised to do this question without using law. ठीक है, क्योंकि सिर्फ सिंप्लीफाई लिखा है, ऐसे नहीं लिखा सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ, ना ही ऐसे आता है. तो कोशिश किया करो कि सिंपल तरीके से करो. इफ यू आर हैविंग अ गुड प्रैक्टिस of solving these question by using the laws, then you can solve by using law also. There is no compulsion that you don't have to use law, but try किया करो इसको open करके, जैसे 12 into 12. hurry up, start doing. When you are opening it, open it very carefully and neatly. बीच बीच में छोटा छोटा नहीं लिखना, फिर उससे मर्ज हो जाते हैं नंबर, वो ध्यान से नहीं पता चलता हमने क्या कटिंग की क्या नहीं की. 6 into 6 into 6 into 27. Now very carefully, it is so easy. 6 2s are 12. Look on the board. 6 2s are 12. 6 2s are 12. ठीक है. 2 2s are 4 2s are 8. 1 8 cancel directly. ठीक हो गया. अब क्या बचा हमारे पास 8 and 27. 9 3s are 27. 3 3s are 9. 4 3s are 12. 4 2s are 8. 2 2s are 4. ठीक है, हो गई कटिंग. 2 into 2 into 2 8 होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है. पहले 6 2 जा 6 2 जा 6 2 जा, फिर 3 बार 2 था, मल्टीप्लाई हो रहा था. आप चाहे सिंगल सिंगल काट दो. 2 कटा 4, 2 काटा 4, ऐसे कर लो. बट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अल्टीमेटली 8 ही होता, तो मैंने वो तीनों 2 8 के साथ काट दिए. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद, लुक ऑन द बोर्ड. वी आर लेफ्ट विद, ये सब कट गया. इसीलिए आपको बोला कि खुला खुला लिखना है, ताकि जब आप एंड में देखने लगो तो आपको क्लियरली पता चले कि व्हाट यू आर लेफ्ट विद व्हाट नंबर्स. सो वी आर लेफ्ट विद दिस 3, this 9, 1 3 and 1 this 2. So 3 into 3 into 3 into 9 into 2, उनको सर्कल कर लिया मैंने ताकि लिखते वक्त भी मेरे से मिस्टेक ना हो. डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, एवरीथिंग इज कैंसल्ड. यस और नो? सो 9 9s are 81, 2s are 162. The answer is 162. Is it clear? So I am not going to take more of these type of questions. These type of questions, you know, I have told you, open it and then solve it. Okay. And one thing more here I need to tell you, beta. As I told you yesterday that your revision test is going to start from next week. So 3 weeks are there. Full syllabus is divided into 2 parts. First of all, in first revision test you will be getting 4 chapters that I will send you today. I have made. ठीक है. सेकेंड रिवीजन टेस्ट में भी आपको 4 चैप्टर्स आएंगे. एंड इन द थर्ड रिवीजन टेस्ट यू विल गेट दी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस फॉर होल सिलेबस फ्रॉम ऑल द 8 चैप्टर्स. ठीक है. पहले रिवीजन टेस्ट में आप 4 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लोगे, सेकंड में भी 4 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लोगे, थर्ड में आपने क्या करना है, सारे चैप्टर्स हो गए, एमसीक्यू भी आते हैं ना एग्जाम में, तो यू विल डू दी प्रैक्टिस फॉर सच क्वेश्चंस. सारे 8 के 8 चैप्टर्स के एमसीक्यू 20 टीचमेंट पे होगा.
इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा बोलो, कैसे मर्जी। Yes, students. So now these are few questions. Now you have to solve it by using law. Kunal, come on the board. Hurry up. देख लो बेटे. No noise at all. Second last boy. बेटा class थोड़ा उधर होकर लिखो. ठीक है. Second last boy, come on the second one. 3 raised to power x. Hurry up. Yes, Anve. Anve, I know the doubt which you have asked. बेटा मैं कर दूंगी clear. मुझे याद है. अभी बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं. You raise your hand. You have any doubt? If not, it's okay, beta. I have read your message. I will take your doubt. So, yes, beta. Why there is noise? When you are solving the question, what is the need to discuss? You do your own. What is this, beta? You can keep it in your pocket now. अपने pocket में अपने बाद में ऐसे रखी कि ना थोड़ा पेपर था. बेटा क्या कर रहे हो ये? पहले तुम ये बताओ और ये लॉ लगाना है. क्या कर रहे हो? कुछ नहीं आता. बिल्कुल गलत कर रहे हो कुणाल. छोड़ दो ये क्वेश्चन. ये वाला करो. Third. Hurry up everyone. Do the questions quickly. Go. Yes, your name? ठीक है. जल्दी जल्दी बेटा क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखने की जरूरत होती. क्वेश्चन क्यों लिखते हैं आप लोग दोबारा? It is written, just solve it. अब ये छोड़ो, ये तो सॉल्व किया हुआ. नेक्स्ट करो. खत्म है मतलब ये. खत्म है. चलो आगे करो. ये देखो पावर 5 कौन से आंसर में पावर 5 नहीं दोबारा नहीं करना. 2 की पावर 5 इसमें तो 5 रेज टू ऊपर आएगा. इट इज लुकिंग 25. ये नहीं पता है. Right, every mother and they power 0 is now so and they power 0 is 0. 1 कितना 30 है. Anything raised power 0 is 1. क्या हाल है? चक्कर आ रहे हैं मुझे तुम लोगों का सॉल्यूशन देख देख के. क्या तुम anything raised to power 0 is 1. जाओ कुणाल, wasting the time. Just wastage of time, wastage of money of the parents. No self love. क्या किया तुम लोगों ने पूरा साल? टाइम वेस्ट किया है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो. 3 raised to power 2 into 3 raised to power x. Now yesterday we did, when we can see that we are having the same base, the powers will be added. So it will be 3 raised to power 2 plus x. X is unknown number. So 2 plus x will remain as it is. इसको आगे कुछ नहीं कर सकते. कुणाल बेटा अब आप बोर्ड पे देखो प्लीज. Stop writing. Now understand. समझना जरूरी है ना. लिखना जरूरी उतना नहीं है इस वक्त हम कॉपी करें. सबसे इम्पोर्टेंट बेटा क्या है? समझना. एटलीस्ट अब कोशिश करो समझने की. दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. If we are having the same base and multiply sign in between, then the powers get added. So 3 raised to power 2 plus x, that is the answer. Clear? मैंने माइक नहीं लगाया.
बड़ा किसी ने हाथ खड़ा करके बोला है, जा रही होगी उनको मेरी आवाज। पहले लगाया था ना, फिर मैं राउंड लेने लग गई थी तो नहीं हुआ। लो ठीक है। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इट इज सॉल्व्ड हियर। 2 raised to power 20 divided by 2 raised to power 15। अब आपने एक और लॉ किया हुआ है, if the bases are same, division sign in between, then the powers get subtracted। 20 minus 15 is 5, मल्टीप्लाई 2 क्यूब, पहले ब्रैकेट में उसको सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व करके आपके पास आया 2 raised to power 5, मल्टीप्लाई 2 क्यूब, देन अगेन बेसिस आर सेम, मल्टीप्लाई साइन इन बिटवीन, अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड। 2 raised to power 5 plus 3, 2 raised to power 8 is correct। Okay, now see the third question। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को रट्टा होना चाहिए कि anything raised to power 0 is 1, anything raised to power 0 is 1, but I am surprised to see that so many students you don't remember that anything raised to power 0 is 1। anything raised to power 0 is 1, even you have crore, 10 करोड़, 100 करोड़, अगर उसकी पावर 0 है तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा, 1। समझ आ गई। सो नाउ सी, आप उसके बाद आपने ऑपरेशन देखने हैं। 2 raised to power 0 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 raised to power 0 is also 1, 1 into 1 1, 1 plus 1, आंसर इज 2। आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसमें सारे क्या है, मल्टीप्लाई वाले ही है, तो आंसर 1 आ रहा है, बट यू हैव टू सी दी ऑपरेशन कि 1 आएगा 2 आएगा आंसर। अगर ऐसे हो 2 raised to power 0 plus 3 raised to power 0 plus 4 raised to power 0, I think it is the book question, I don't remember, so 1 plus 1 plus 1 it is 3। okay, then question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, ये वैसा ही है जैसे हमने कल किया था 8 raised to power 2 वाला। अगर आपको याद है, हमारे पास क्या है, 25 raised to power 4 divided by 5 क्यूब। अब अगर लिखा है सिंप्लीफाई, अगर सिंपल सिंप्लीफाई लिखा है तो आप 25 को 4 बार ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 5 को नीचे, फिर कटिंग कर दोगे। लेकिन अगर लिखा है सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ, then how to do, you know what are the laws, either the basis should be the same or the powers। ना बेस सेम है इसमें ना पावर, बट हमारे दिमाग में क्लिक किया कि 25 5 के साथ उसका क्या रिलेशन है, 5 स्क्वायर इज 25, तो हमने 25 के जगह लिख दिया 5 स्क्वायर, और उसकी पावर क्या है 4, मींस 4 अपनी जगह पे ही है, मैंने 25 की जगह पे क्या लिखा, 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। ओके, नाउ पावर की पावर a raised to power m whole power n, पावर की पावर gets multiply। Adish, you are his teacher, then what you want to prove, sit in the center। Two fours are 8, 5 raised to power 8 divided by 5 raised to power 3, base same, divide sign, so powers will get subtracted। 5 raised to power 8 minus 3 is 5 raised to power 5। okay, now come to the next question। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेश्चन अगेन। अगेन वी कैन सी, ये पावर की पावर है, पावर की पावर, it will get multiply 2 raised to power 10 into 7 cube over 8 cube into 7। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, लॉ लगा के करना है ये, अगर लॉ ना लगाना हो फिर तो हम सीधा इसको खोलेंगे, कटिंग कर देंगे, बट here we need to solve this question using law। again we know what is 8, 8 is 2 cube, 2 into 2 into 2 is 8, तो 2 raised to power 10 into 7 cube over 8 की जगह पे बेटा मैंने लिखा 2 क्यूब,
2 क्यूब और उसकी पावर कितनी है 8 की 3। ये स्टेप दोबारा समझ लो। 8 is 2 cube whole power 3 into 7. Now 2 raised to power 10 into 7 cube over 2 raised to power 9 into 7. Now beta, see, we have to use the law. We can see this means division sign. 2 raised to power 10 divided by 2 raised to power 9 into 7 cube over 7. बेस सेम है, डिवीजन का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्टेड होंगी। 2 रेज टू पावर 10 माइनस 9 इंटू 7 रेज टू पावर 3 माइनस 1, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 7 स्क्वायर। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला तो यही छोड़ देंगे, नहीं तो 7 7 का 49 इंटू 2 98 आंसर आएगा। लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 रेज टू पावर 1 को सिंपल 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। मैंने बानी क्या बोला इनिशियली कि यहाँ पर लिखा है, मैंने बोला था सिंप्लीफाई यूजिंग दी लॉज। अगर ऐसे क्वेश्चन में लॉ भी लिखा आता है कई बार, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ। कटिंग मेथड तो मैंने आपको करवा ही दिया, वो तो इजी है। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एंड इट इज रिटन सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ, तो लॉ से ही करना है, फिर कटिंग मेथड का 0 मार्क है। Right, again I am saying if it is written in the question simplify using law and then also you are doing the cutting method, then you get 0 for that because no law is applied and it is asked to apply in the question. Okay, right. So beta again 5 questions are there, quickly solve it. All right, आप लोग अपना फिक्र करो, वैसे चलो अच्छी बात है बता देते हो, घर वाले बच्चों की आपको ज्यादा फिक्र है। मैम माइक नहीं लगाया। Is it clear? I hope it is clear. 9 p by q की वैल्यू बेटा 9/4 आई, उसका क्यूब किया तो we get 720। सॉल्व करना है इसको पूरा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जब भी x वाले क्वेश्चन आएंगे रुद्रांश प्लीज सिट प्रॉपर्ली, whenever you will get the question find x, तो x वाले क्वेश्चन में बेटा सॉल्व नहीं करना होता, उसमें लॉ लगता है, हमेशा लॉ लगता है उसको। ये जो आपका है 2/9 रेज़ टू पावर क्यूब, उसको सॉल्व थोड़ी करना है। You can see we are having same base 2/9 2/9 and multiply sign in between. If the bases are same and multiply sign in between, product get added. 2/9 raised to power 9, 3 plus 6 9 is equal to 2/9 raised to power 2x minus 1। ये स्टेप समझ आ गया? Then it is very 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 easy। इक्वल टू साइन है, दोनों तरफ बेस सेम है। अगर बेटा दोनों तरफ बेस सेम होता है तो पावर क्या होती हैं? मेरा ना गला दुखने लग गया था जब मैंने ये कितने क्वेश्चन आपको वीडियो बना बना के रिवीजन में, याद है रिवीजन कितनी हुई थी, ऐसे कितने क्वेश्चन करवाए थे बेटा। when both the bases are same and equal to sign in between, then the powers are also equal। ऐसा कोई लॉ थोड़ी किया है इक्वल टू साइन वाला। अगर दो इक्वल टू का साइन है and on both the side bases are same, then the powers are also equal। ना सेम या इक्वल, 9 is equal to 2x minus 1, ये -1 उधर जाकर +1, 10 is equal to 2x, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, so x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ओके, these type of questions are very very important and mostly they come in 3 marks or 4 marks and only 2 steps question it is, 2 या 3, और वो 4 marks में आता है। and we people अपनी तरफ से हम उसको 4 marks में डालते हैं कि आपको आप नंबर ले लो, आपको अच्छा स्कोर आए, बट इतना इजी क्वेश्चन भी यू पीपल डजंट डू। वी आर सरप्राइज्ड दैट टाइम कि इतना इजी भी नहीं तुम लोग कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, simplify। this is so easy question, so easy।
सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है. इन दिस ब्रैकेट same base powers will be added. 3 raised to power 7, 4 plus 7, 4 plus 5 is 9. Divided by 3 raised to power 7, 3 by 7 raised to power 7. Very easy. Same base, division sign, so powers will be subtracted. 3 by 7 raised to power 9 minus 7, 2. Answer is 9 by 49. हाँ? अगर लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ दो तो वही छोड़ देना है. अगर नहीं लिखा तो पावर अगर 5 है तब सॉल्व कर, 5 तक है तो सॉल्व करना है. अगर 5 से ज्यादा है तो छोड़, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ सकते हो. फाइन. नेक्स्ट अगेन सो इजी क्वेश्चन. फाइंड एक्स. हैव यू डन? करो चलो शाबाश. यस प्रबल. मैम मैंने ये पूछना कि मैम आपने मिलिट्री नहीं भेजा ग्रुप में. दोबारा बोलो, कुछ समझ नहीं आई. मैम ग्रुप में सिमेट्री चैप्टर का होमवर्क नहीं भेजा. ये क्वेश्चन पे ध्यान दो प्रबल, मिल जाएगा होमवर्क. डेली आई यूज टू टेल ये होमवर्क है, ये होमवर्क है. एनीवेज सेम बेस, मल्टीप्लाई साइन इन बिटवीन, पावर्स विल बी 1 by 5 raised to power 24, 1 by 5 raised to power 8x. Hello, quite same base, equal to sign, powers will be equal. 24 is equal to 8x. So x is equal to 3. All right. So tomorrow, beta, tomorrow I will take 2 to 3 questions of exponents. Then we will take the another chapter. कल सिंपल इक्वेशन चैप्टर सारे रिवाइज करके आएंगे. एक मैं चेक कर लूं तुम्हारे फर्स्ट रिवीजन टेस्ट में. वेट बता देती हूँ, मैसेज भेजूंगी. सिंपल इक्वेशन चैप्टर सारे रिवाइज करके आएंगे कल. ओके. Online students, I am going to ask the question from you also. So revise simple equation chapter and this exponents and power at home. You are having sufficient time to revise. Take care.